जो मैच नहीं खेल रहे दो टीम में वो लोग यहाँ पर आ जाइए प्लीज. चार अभी 4 ओवर का होगा. ऑन फील्ड अंपायर यांना विनंती लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायचं आहे. तेलुगु टाइटन्स जैसे फील्ड सेट कीजिए और तेलुगु हीरोज के दोनों बल्लेबाज ओपनिंग पेयर has already been there on the ground. कौन అరే ఏమైంది తెలుసా ఆడ బౌండరీ కట్ ఏమైంది తెలుసా వాళ్ళందరూ అందరు బౌండరీ అందరు బౌండరీ కట్ ముందంటే ఉన్నారు. इसी तरह एमर्जिंग प्लेयर टाइटन्स के सादुला the young and dynamic, the 16 years old, a upcoming emerging talent of Telugu Premier League, Suraj Sadula will go into open the innings. 10वीं के बोर्ड एग्जाम लिख के आए हैं ये प्लेयर. अंतिम सामना पहिला इनिंग पहिली ओव्हर पहिली गेंद. A distraction in the middle. A player एक कौन है यहाँ पर? अरे मैच चालू है दोस्त. फाइनल मैच का पहला इनिंग की पहली ओवर की पहली गेंद सूरज सादुला और स्ट्राइक पर रोहित चापा. वन टू थ्री गो. चालू करो क्यों ये विशाल विशाल स्कोरर को बोलना. इसी तरह पहली गेंद पे अंपायर का इशारा 2 रन डिक्लेयर. अंपायर बॉल. अरे बोल मनोज. यूज किया बोल कि पहले ही बोले ना. अरे बॉल कौन दिला होगा ना. ए यू అతనే యు మళ్ళీ పాత బాల్ ఇచ్చినామంటారు కదా ఓపెన్ చేస్తే. इसी तरह हीरोज का पहला बॉल. अच्छी कमबैक यहाँ पर B2G की बल्लेबाज यहाँ पर रोहित चापा और इसी के साथ 1 रन लेग बाइस लेते हुए.
एक प्रॉब्लम आहे ते అందరూ అన్ని మ్యాచ్లు ఇద్దరే ఆడారు వీళ్ళదా మూడో మ్యాచ్ ఆడింది వీడు మూడో మ్యాచ్ ఆడింది వీడు అప్పుడు కొత్త బ్యాట్స్మెన్ ట్రై చేసేవాడు అలాగే లాస్ట్ ఓవర్ में ट्राई ఏమంటాడు మోహన్ కూడా అంటుంది मैं बोल रहा था ना बोलके आने మాట వింటుంది అందరు బౌలింగ్ भी लीक చేంज आने नहीं तो ఎత్తుండు फिर एक बार बीट हो चुके हैं यहाँ पर बैट्समैन विनायक अटला और एक एक्स्ट्रा बहुत ही रेयरली कीपर विशाल बोरवंचा से छूटती है बॉल. बॉलर बहुत ही अच्छे से सूझबूझ से बॉलिंग कर रहे हैं. मतलब बॉल एंड कట్టుకుంటే బాల్ చోర్ అంటారు. बहुत ही अच्छा बॉल. सबसे बड़े प्लेयर को एक छोटा सा बच्चा మనం 16 చూస్తూ साल ఉన్నాం के 16 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి సూరజ్ సాదుల అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ చేస్తూ వికెట్ తీయడం జరిగింది. అది కూడా రోహిత్ చాపా ఒక మంచి పేరు వంచినటువంటి ఆటగాడు మన వర్రి విభాగంలో. అలాంటి ఒక ఆటగాడి వికెట్ 16 ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి అబ్బాయి తీయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. నెక్స్ట్ చేతున్ రిఫ్రెష్ వస్తా అంటున్నాడు. మంచి కట్ షాట్ ఇది ఆఫ్ సైడ్లో ఒక పరుగు తీయడం జరిగింది. రెండో పరుగు ప్రయత్నించట్లేదు. ఒకే పరుగుతోటి ఆనందపడాల్సినటువంటి సమయం తెలుగు యూజర్స్కి. अभी क्रीज पे आए हैं विनायक लोका, जिन्होंने लीग मैचेस में हारते हुए मैच को अपने अकेले दम से जिताए थे 4-6 मारकर. మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లేయర్స్. మంచి ట్రై. రెండో వికెట్ కూడా అవుతుండే ఈ ఓవర్లో, కానీ కొద్దిలో క్యాచ్ మిస్ అవ్వడం జరిగింది. फील्डर द्वारा अच्छा कोशिश था कैच पकड़ने की. इसी तरह फाइनल की फर्स्ट इनिंग की तेलुगु टाइटंस का ओवर खत्म होते हुए अभी दूसरा ओवर लेकर आए हैं विशाल बोरवंचा. ఇంతటితో మొదటి ఓవర్ తర్వాత స్కోర్ 6 పరుగులు 1 వికెట్ పతనంతో. विनायक लोका ऊपर मारते हुए अंपायर का इशारा 2 रन डिक्लेयर. 2 పరుగులు डिक्लेयर विशाल बोरवंचा. कमेटी के जो मेंबर्स हैं नेक्स्ट जन के, वो लोग स्टेज के इधर आ जाइए. फाइनल मैच के बाद प्रेजेंटेशन रहेगा. मेरा विनंती है. మంచి గ్రౌండ్ షాట్ ఇది, అంతే మంచి ఫీల్డింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి అదే దిశలో కొట్టడం జరిగింది. అంతే మంచి ఫీల్డింగ్. ఒకే ఒక పరుగు. మంచి బౌలింగ్ చేస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. విశాల్ బోర్వంచ అందరు క్యాప్ తీసి బౌలింగ్ చేస్తారు, కానీ విశాల్ యొక్క స్టైల్ క్యాప్ పెట్టుకొని బౌలింగ్ చేయడం అనేది అతని యొక్క మేనరిజం. अच्छा बॉलिंग करते हैं विशाल बोरवंचा.
विनायक लोका जो 4 6 मारे थे लीग मैच में, यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए बड़ा शॉट मारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे नहीं लग पा रही है। इसी तरह अगला बॉल लेकर आ रहे हैं विशाल बरवंचा। ये ओवर के लास्ट 2 बॉल बचे हैं। అంపైర్ కా ఇషారా వైడ్, ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో వైడ్ ద్వారా ఒక పరుగు రావడం జరుగుతుంది. గతి తప్పి బౌలింగ్ చేశాడు కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రా రన్ అనేది తెలుగు హీరో స్కోర్ కార్డులో యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సిద్ధేశ్వర్ వంగ వికెట్ల వెనుక వికెట్ కీపింగ్ చేస్తున్నాడు. ఈ రెండో ఓవర్లో ఆఖరి బంతి సిక్స్ కొట్టినప్పుడు అను దబిడి దిబిడి అని అప్పుడు ఫేమస్ అవుతాయి. మంచి గేమ్ ఇది బంతి. దీని ద్వారా 2 ఓవర్ల తర్వాత స్కోర్ 12 పరుగులు, ఒక వికెట్ एक विकेट. అవుట్ हो गया. सप्पा మాట్లాడుతున్నావు. तू सपड़ा पोए थोड़ा मसाला डाल. भाई क्या हो गया, नेट बंद हुआ क्या, लाइव नहीं दिख रहा बोल रहा है. एक ये में देख रहा है. తెలుగు హీరోస్కి ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో గెలవాలి అంటే ఒక మంచి స్కోర్ కావాలి. ఆ స్కోర్ కొట్టే మగాడు ఎవర్రా బుజ్జి అనేది చూసుకుందాం. ఇప్పుడు వచ్చింది డైలాగ్, నువ్వు మిస్ అయినవరా. ఏకై చాలు అయినా. శ్రీధర్ గారు, ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి సినిమా డైలాగు విడిసారు, అది చాలా బాగా అనిపించింది. ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారని మా యొక్క మనవి. విల్ కంటిన్యూ ద సేమ్ మొమెంటం. మనం చూసుకున్నట్లయితే డైలాగ్ సిక్స్ కొడితే इसी तरह तेलुगु हीरोज का स्कोर हुआ है 2 ओवर में 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. क्रीज पर है विनायक अटला वर्सेस विनायक लोका. ఆడే అని బ్యాట్స్మెన్ పేరు చెప్పు. विनायक लोका को स्ट्राइक है. बालाजी तीसरा ओवर लेके आते हुए तेलुगु टाइटंस को. तेलुगु टाइटंस जरा जल्द से जल्द फील्ड सेट करके अपना मैच शुरू कर दीजिए. इसके बाद प्रेजेंटेशन रहेगा. ఫీల్డింగ్లో మార్పును మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మధుకర్ చాప మిడ్ ఆఫ్లోకి రావడం జరిగింది ఫీల్డింగ్ మార్పిడి ద్వారా. హూ విల్ బి ద హీరో ఫర్ తెలుగు హీరోస్ టు సెట్ ద హై టార్గెట్ ఫర్ హిస్ టీమ్? తెలుగు హీరోస్కి ఒక పెద్ద టార్గెట్ కావాలి అని అంటే ఎవరైనా ఒక ముందుకు వచ్చి ఇచ్చినా ఇప్పుడు ఒకటి ఇంకొకటి తాగు అది రాని అయింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి తాగు బాగా ఏమంటారు. ఫుల్ టాస్ ఇది గ్యాప్లో కొట్టడం జరిగింది. అంతే మంచి ఫీల్డింగ్ విశాల్ ద్వారా 2 పరుగులు ప్రయత్నించి 3వ పరుగు కోసం ప్రయత్నించడానికి చూస్తున్నారు. 2 పరుగులతో ఆనందపడాల్సి ఉంటుంది. इसी तरह बालाजी का पहला बॉल में 2 रन आया है. स्कोर हुआ है 14 रन, 2 ओवर 1 बॉल, 1 विकेट के नुकसान पर. अब फर्स्ट इनिंग के लास्ट के 11 बॉल बचे हैं. एक बड़ा शॉट की आवश्यकता है तेलुगु हीरोज को. ఆడ అట్లనే అంటాడు మన ఐపీఎల్.
एक ఇది लंबा ఆకాశాన్ని shot. ముట్టేటటువంటి బంతి క్యాచ్ అవుతుందో చూడాలి. కానీ పాప్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఫీల్డర్. రెండు పరుగులు రావడం జరిగింది. గుడ్లా కార్తిక్ ద్వారా క్యాచ్ మిస్ అయింది. అతను చాలా మంచి ఫీల్డర్, కాకపోతే సూర్యుడు వచ్చేందుకు అతనికి క్యాచ్ జడ్జ్ కాలేకపోయింది. వైడ్ ఒక రన్ తీసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్. అంపైర్ కా ఇషారా అవుట్. మంచి ఫీల్డింగ్ మన వికెట్ కీపర్ సిద్ధేశ్వర్ వంగా ద్వారా. బాల్ టు రన్ పడుతుంది. అంతకంటే ముందు మంచి రాలే, అప్పుడు మంచి ఇట్లా టాలెంట్ తీసుకోవాలి. 16-17 చిన్న పిల్లలు, అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ పిల్లలు అవి ఆప్షన్లో కూడా నేను ఆప్షన్ చేస్తాను. అన్ని పేరున్న వాళ్ళదే ఆప్షన్ చేసుకుంటాను. మంచి పేరు లేని వాళ్ళు ఆప్షన్ వచ్చినట్టు బెస్ట్ ఆల్రౌండర్ పేరుగాంచిన ప్లేయర్ ఇవ్వాలి. నాకు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి. ఎడిబెల్ రాటు తేలిన ప్లేయర్ అని మొన్న ఆడలేదా? అరే మాదాలే ఉండే కోట్ల కాదు అరవిందా లీగ్ అరవింద మీద బరోబర్. అది ఒకటే రోజు ఉండే లీగ్ 8 ఆడికి మీదకి ఇటువలేనారా 8 ఉండే. The real dog robo has came into the ground. 2 పరుగుల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. అంతే మంచి ఫీల్డింగ్ కానీ డైరెక్ట్ హిట్ కాలేదు. కాబట్టి 2 పరుగులు సునాయాసంగా తీయడం జరిగింది. ఎల్లో కలర్ కరిజ్మా వాళ్ళది ఏమన్నా నవాజీ. ఎల్లో కలర్ కరిష్మా బైక్ లక్ష్మణ్ సంఘ రాహుల్ 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 బొడ్డు ఎక్కడున్నారు? మీ బైక్ కొంచెం అంతా సైడ్కి వేయండి. రాహుల్ బొడ్డు. करिश्मा आपका है क्या? बस 100 रुपये पेनल्टी दो इधर. తెలుగు హీరోస్లో సిక్సర్స్ కొట్టే మగవాళ్ళే లేరా అనేటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే పెద్ద షాట్లు రావట్లేదు, ఆరిపోయాయి షాట్లు. इसी तरह तेलुगु हीरोज का स्कोर हुआ है 22 रन पे 2 विकेट. ये तीसरा ओवर का लास्ट बॉल बचा है. तेलुगु हीरोज के कैप्टन एडिचरला राजेश अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं फाइनल मैच में अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए. గట్టి షాట్ కొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ బంతి అనేది బల్లకు తగడలేం లేదు. రన్అట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇక్కడ సిద్ధేశ్వర్ వంగ, కానీ నో రన్అట్. తెలుగు హీరోస్ కోసం ఈ మ్యాచ్లో, ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ను నిలబడి ఉండాలి అనంటే పెద్ద స్కోర్ అవసరం. ఆ పెద్ద స్కోర్ కొట్టాలి అనంటే పెద్ద షాట్స్ కొట్టేటటువంటి మగాడు కావాలిరా బుజ్జి, అవునా కదా? ఏక నంబర్
बुलाया वो आ रहे 10-15 घंटे रेडी मार्ग में आ रहे 10। 3 ओवर के बाद स्कोर की 23 रन 2 विकेट। पानी, अरे पानी, वाटर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स जगह पर भी वो पानी लेके जाए ग्राउंड में। यहाँ पर हीरोज के कैप्टन अजय चला राजेश को क्रैम्प्स आते हुए वो ఫస్ట్ ఎయిడ్ కా బాక్స్ లేకే जाओ ना అలా ఇది తీసుకెళ్ళండు అలా గిడ ఉందిరా తీసుకురా స్ప్రే తీసుకెళ్ళరా అది ఎందుకు తీసినవారు అలా కచరా పడుతుంది అలా నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా నడుతుంది పెట్టి పెట్టు లేకుంటే కచరా పడితే ఆ నీళ్ళన్నీ వేస్ట్ అవుతాయిగా పైన చూడు కదా చూసి इसी तरह हीरोज का स्कोर हुआ है 3 ओवर में 23 रन। ప్రెజెంటేషన్ ఇన్నే ఒకటి కొనుక్కోగలరా ఫ్యాను కూలరు ఇట్లా పట్టుకొని తిరుగు చిన్న ఫ్యాన్ కొనుక్కోవాలి కూలర్ इसी तरह तेलुगु टाइटंस का लास्ट ओवर लेकर आ रहे हैं और మధు మధు కార్తిక్ బౌలర్ వల్ల కక్కడికోట अजय अपना लास्ट ओवर लेकर आ रहे हैं तेलुगु टाइटंस के लिए। स्कोर हुआ है 23 रन। ఎంతో గట్టిగా కొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ కూడా బంతి అనేది బ్యాట్ను ముద్దాడడం లేదు అసలుకే। బంతికి బల్లకు దూరం పెరిగింది కాబట్టి అసలు కనెక్ట్ అవడం లేదు। ఇప్పుడే నెహ్రూ నగర్ ప్లేయర్ దినేష్ వంగ గారు స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చేసారు। ధన్యవాదములు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ నుంచి దినేష్ వంగ గారికి। స్పోర్ట్స్ క్లబ్కి పూల్ వచ్చిందని చెప్పు Over the Siddheshwar Vanga's head and it is just 1 run. మొత్తం ఫ్లాప్ అయింది इसी तरह विनायक लोहा का एक लंबा शॉट 2 रन भागे है।
ये इनिंग का अभी लास्ट 2 बॉल बचे हैं, 28 रन हुए हैं। विनायक लोका 10 बॉल खेले, अभी तक 10 रन बनाए। बहुत ही प्रयास कर रहे हैं एक लंबा बड़ा शॉट के लिए, जो नहीं हो पा रहा है। इसी तरह अजय का अच्छा ओवर बीता, अभी तक 4 बॉल में सिर्फ 4 रन दिए हैं। और एक प्रयास असफल होता हुआ। थर्ड मैन की दिशा में गेंद और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। कोई लंबा शॉट यहाँ पर नहीं लगता हुआ तेलुगु हीरोज का बल्ले से। आखिरी गेंद ये इनिंग का लास्ट बॉल है। इसी तरह बड़ा शॉट एडी चला। अंपायर का इशारा, 4 रन यहाँ पर आखिरी गेंद पर चौका रहता हुआ अपने टीम के लिए। इसी के साथ स्कोर 33। 33 4 ओवर की समाप्ति पर तेलुगु टाइटंस को इस मैच को जीतने के लिए 34 रन 34 रन की जरूरत 24 गेंदों में। इस फाइनल ట్రోఫీ అనేది ఎవరికి దక్కుతుందో అనేది చూడాలని అంటే ఇంకొక ఇన్నింగ్స్ ఆగాల్సినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. తెలుగు హీరోస్ మరియు తెలుగు టైటన్స్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆఖరి పోరులో తెలుగు హీరోస్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి వారి 4 ఓవర్లలో 33 పరుగులు చేయడం జరిగింది. తెలుగు టైటన్స్ ఈ మ్యాచ్ గెలవాలి అని అంటే 34 పరుగులు చేయాల్సి ఉంటుంది వారి 24 బంతుల లోపల. बोला इडे పెడతా ऑन फील्ड अंपायर यांना विनंती आहे आपण अंतिम सामना दुसरा फेरी दुसरा इनिंग लवकरात लवकर सुरुवात करायचं आहे. बॉल बॉल दे ना नया. इसमें नहीं है बॉल కొత్త ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स किधर है यहाँ पर? मैडी बॉल अरे कोई फंड गया है वेंचो अरे इधर ही रखा था
Hello, 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 hello. The Next Gen Sports Club presents Telugu Premier League Season 3 2025. The final match played between Telugu Heroes versus Telugu Titans. Telugu Heroes has scored 33 runs in the 4 overs and Telugu Titans required 34 runs in 4 overs to win the final match. మ్యాచ్ గెలవాలి అని అంటే ఒక టీంకి వికెట్స్ కావాలి, మరొక టీమ్స్కి పరుగులు కావాలి. చూడాలి ఏ విధంగా Vishal Borvancha, kindly listen over here. Every 6 you hit, 200 rupees will be given by Naveen Boga. Vishal Borvancha, this is only for you. A special offer on May 1st. पहली 6 आया गया यहाँ पर 200 रुपए के चक्कर में विकेट को है यहाँ पर विशाल बोरवंचा ने. मी काय बोल अरे हो मी बोललो ना तुला तो 200 ला त्याला आउट होणार झाला ना आउट विकेट के लिए 301 मेरी तरफ से आउट हो गए. इसके लिए विशाल बोरवंजा को 301. बोल 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 विशाल बोरवंचा, आप 6 तो मारा नहीं लेकिन आपका विकेट गया है, इसके लिए आपको 301 रुपए मिलने वाला है. रोहित नहीं 200 रुपए 6 घूम गया ना तो 200 इधर ट्रांसफर हुआ. बोल विशाल बोरवंचा, आपका बल्लेबाजी के लिए 200 रुपए का इनाम रखा था 6 मारने के लिए. 6 तो गए नहीं लेकिन जो रोहित चापा ने विकेट निकाला उसको लिए 200 रुपए ट्रांसफर बैट्समैन से लेके बॉलर्स को दिया जाएगा. रोहित चापा, आर यू हैप्पी? रोहित चापा 200 रुपए मिल गया. नवीन बोआ उनकी तरफ से 201 रुपए का रोक रकम. बहुत ही रोमांच भरा मैच यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वर्ली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में. इस तरह पहला बॉल पे विकेट आया है. वन डाउन बैट्समैन अजय सिंगल लेते हुए. महेश रामपिली जी, कैसे देखते हो इस सेकेंड इनिंग्स को? मुझे तो लग रहा है जो टारगेट है 34 रन्स, ये इजी टारगेट नहीं है क्योंकि फाइनल मैच है. फाइनल मैच का प्रेशर अलग रहता है और फील्डिंग टीम के जो कैप्टन है अडिचला राजेश, वो पूरी कोशिश करेंगे टारगेट को डिफेंड करने की. उसी तरह टाइटंस भी टारगेट अचीव करने का अपना अच्छा अंदाज करेंगे. इसी तरह बहुत ही अच्छी अच्छा फील्डिंग फील्डिंग यहाँ करते पर हुए नरेश काशेट्टी द्वारा पॉइंट में अच्छी तरह फील्डिंग करवाया. बहुत ही अच्छा फील्ड किया उन्होंने. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रोहित चापा का, गैप में मारता हुआ गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को. वर्ली स्पोर्ट्स क्लब के मैदान कचाकच भरा हुआ दर्शकों के साथ इस अंतिम सामना, अंतिम फेरी तेलुगु हीरोज वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच. इस ओवर में 4 बॉल हुए हैं. अभी एक लंबा बड़ी शॉट की कोच में है साई वासम. द कैप्टन ब्लैक टी शर्ट. थोड़ा बोलना लास्ट 2 ओवर है. फिर एक बार अच्छी गेंद लेग साइड की दिशा में प्लेस किया हुआ, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा.
ये फर्स्ट ओवर का लास्ट बॉल लेते आ रहे रोहित चापा, 5 बॉल में 4 रन दिए, 1 विकेट के नुकसान से। किस तरह से देखते हैं अब बल्लेबाजी जो हो रही है, ट्राई नहीं कर रहे हैं मारने की, अब डिफेंस करते हुआ। ये उनका कुछ स्ट्रैटेजी रहेगा जो विकेट पे खड़ा रह के रोहित चापा का ओवर निकाल देंगे और बचे हुए 3 ओवर्स में चांस लेने की, क्योंकि उनके पहले बॉल पे विशाल जो उनके ओपनर बैट्समैन है उनका विकेट गया है, तो वो विकेट जाने के गम में वो लोग अपने विकेट को बचा के रखने के लिए सिंगल खेल रहे हैं। अभी 18 बॉल में 3 ओवर में 29 रन चाहिए तेलुगु टाइटंस को विजेता होने के लिए। दुसरा 18 चेंडूमध्ये 29 धावाचा गरज तेलुगु टायटनला या सामना जिंकण्याकरता। चला नमस्कार मित्रांनो, आता मात्र फायनलचा हा महाअंतिमचा सामना इथे सुरू आहे आणि या महाअंतिम सामन्यात आपण बघतोय तेलुगु प्रीमियर लीगचा या 2025चा हा शेवटचा सामना आणि ऐतिहासिक सामना देखील मैदानात सुरू आहे। धडाकेबाज सुरुवात तर झाली आहे, 5 धावा झाल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात, दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे, धावा जाऊन पोहोचल्यात त्या मात्र 5। आखू टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर लेगला डीपला खेळलाय, झेल सुटलाय, मात्र 2 धावा पूर्ण केल्यात। आधी तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील यशस्वी। क्या बात आहे, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानात बघायला मिळते। सुरुवात तर सुरेख केली आहे। फलंदाजीवर आपण बघतोय साई वत्सम आणि अजय, दोनही फलंदाज मात्र आपल्या संघासाठी फायनल पर्यंत झटताना आपल्याला दिसतात। खरं तर दोन्ही सामने आपण बघतोय प्रत्येक बॉलवर हल्ला प्रतिहल्ला चढवायचा प्रयत्न करतोय, मात्र धावा मला वाटतं कमी आहेत। 33 धावा 24 बॉल मध्ये आपल्याला करायच्या आहेत आणि सुरुवात तर मला वाटतं रोहित छापा यांनी कडक करून दिली आहे, कारण वरळीतील एक अष्टपैलू खेळाडू आणि आज मात्र तेलुगु प्रीमियर लीग मध्ये उत्तम कामगिरी करताना आपल्याला दिसतोय। मला वाटतं मॅन ऑफ द सिरीजच्या लाईन मध्ये हा एक उत्तम दर्जाचा खेळाडू आहे। बघूया कोणाला जाते मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी कोण होतोय। सुरेख फटका, बॉल आहे हवेत, बघायचं काय होतंय। 1 धाव पूर्ण आणि दुसऱ्या धावेचा देखील यशस्वी पूर्णरित्या। खरोखर प्रत्येक बॉलवर आता मात्र एकेरी दुहेरी धावेचा प्रयत्न मात्र सुरू आहे। मैदानात हा महाअंतिम सामना सुरू आहे आणि या महाअंतिम सामन्यात मला वाटतं ताक देखील फुंकून पिलं जात आहे, कारण विशाल बोरवनच्या हा पहिल्याच बॉलवर मला वाटतं आऊट झालेला आहे आणि हा मला वाटतं आधारस्तंभ होता तेलुगु टायटन्स या संघाचा। आता मात्र स्ट्राईकवर आलाय साई आणि साईला देखील माहिती आहे आपल्या संघाला काय गरज आहे, आपल्या संघाला आता मात्र स्तरित राहायची गरज आहे। पुढे सरसावून सुंदर फटका, एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरनं बॉल जातोय थेट सीमा रेषा पार, चौकार। क्या बात है, सुंदर फटका आपल्याला बघायला मिळाला, गॅप मध्ये खेळलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आणि मित्रांनो सुरेख फटका आपल्याला बघायला मिळाला। विराट कोहलीची आठवण करून देणार हा फटका। क्या बात है, धडाकेबाज सुरुवात आणि साई आपण बघितलं पुढे सरसावून हा फटका खेळलाय आणि तब्बल 4 धावा आपल्या संघासाठी मिळवल्यात। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र एका गड्याच्या मोबदल्यात 14। अजून देखील दुसरं षटक सुरू आहे आणि 4 षटकांचा हा खेळ असणार आहे मित्रांनो। तब्बल 33 धावा या धावफलकावर लगवायच्या आहेत आणि महाअंतिम सामना सुरू आहे मित्रांनो। सहजासहजी कुठलाही संघ हार मानणार नाहीये। आपल्याला माहिती आहे तेलुगु प्रीमियर लीगचे हे दोनही संघ आज मात्र महाअंतिम सामन्यात मला वाटतं दुसऱ्यांदा खेळतायत। परत एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू डीप मध्ये मारा केलाय, क्षेत्ररक्षकात गडबड, खराब क्षेत्ररक्षण, एकेची दुहेरी धाव देऊन बसलेत। आता मात्र मैदानात थोडीशी धांदल सुरू आहे।
तेलुगू हिरोज या संघाचे गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत, मात्र तेलुगू हिरोज या संघाचे क्षेत्ररक्षक थोडीशी गडबड करताना मैदानात दिसत आहेत, कारण 33 धावा मला वाटतं या मैदानात सहजरित्या बनवता येतील. मात्र क्षेत्ररक्षण जर मातब्बर असलं तरच मात्र विजयाच्या दिशेने आपण वाटचाल करू शकताय. साई आणि अजय मात्र मैदानात धडाकेबाद फलंदाजी करतायत. आता मात्र पुलर लेनचा चेंडू, डॉट चेंडू, क्या बात है, कम बॅक म्हणायला येईल. बॉलरचं नाव काय? विनायक. खरोखर विनायक आटला याच्याकडनं मात्र कमबॅक बघायला मिळतंय, कारण क्षेत्ररक्षकात त्याला साजेशी कामगिरी करता येत नाहीये. मात्र गोलंदाजी सुंदर करून आपल्या संघाला मात्र निर्णायक स्थितीत आणून ठेवतोय विनायक. त्याचबरोबर सर्व प्रेक्षक वर्गांचं देखील इथे हार्दिक स्वागत करतोय. आपण बघतोय महाअंतिम सामना सुरू आहे आणि या महाअंतिम सामन्यात आपल्याला वरळीतील तमाम खेळाडू, तमाम प्रेक्षक वर्ग देखील दिसत आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे. आता मात्र पल्लू स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र फलंदाज मिस झालाय, कारण विनायक आता मात्र या खेळाडूने कमबॅक करायचं मैदानात साचून घेतलंय. 2 षटका अखेरीस धावा जाऊन पोहोचल्यात त्या मात्र 16. आता मात्र 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज आहे. आता मैदानात चर्चासत्र सुरू आहे. शेवटचे 2 षटक कोण हाताळणार आणि कोण उचलणार ही तेलुगू प्रीमियर लीगचा महाअंतिमचा चॅम्पियन्सचा ट्रॉफी. 2 षटका अखेरीत धावा जाऊन पोहोचल्यात त्या 16. एका गड्याच्या मोबदल्यात 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज. चला लगेचच सामना सुरू करायचा आहे, कारण सूर्यास्त व्हायच्या आधी आपल्याला मात्र हा महाअंतिम सामना संपवायचा आहे. खरं तर मोठा संघ आहे, दोनही संघ तेलुगू हिरोज विरुद्ध तेलुगू टायटन्स हे दोनही संघ आज मात्र महाअंतिम सामन्यात आपल्याला खेळताना दिसत आहेत. आणि या दोनही संघात मला वाटतं मुंबईतील तेलुगू लीगचे टॉपर, टेनिस क्रिकेट जगतातले तेलुगू प्रीमियर लीगचे हे सुंदर खेळाडू आज मात्र महाअंतिम सामन्यात खेळताना आपल्याला दिसत आहेत. त्याचबरोबर विशाल बोरवनच्या आपण बघितलं पहिल्या बॉलवर आउट झालेले, मात्र आज आपल्या संघाच्या फलंदाजासाठी संदेश आणि पाणी पुरवत असताना आपल्याला मैदानात दिसत आहेत. आणि आज ते फुल पॅडवर दिसत आहेत. आपण वरळीत त्याला बघत असतो, कुठेही टुर्नामेंट असू द्या, हाफ पॅन्टवर हा मात्र खेळाडू बघायला का होईना, खेळायला का होईना मात्र हजर असतो. मात्र आज फुल पॅन्टवर आलाय, त्याचं देखील कौतुक करावं लागेल. चला मित्रांनो, मॅचकडे वळूया. 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज. तिसरं षटक घेऊन आलाय तो मात्र तेलुगू हिरोज या संघाचा कर्णधार, तो म्हणजेच ॲडिचरला राजेश उर्फ ॲडी. ॲडी यांचा पहिला चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हल्ला चढवलाय, खराब क्षेत्ररक्षण, एक धाव पळून पूर्ण, मात्र दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न माघारी पाठवलाय, कारण साई आणि अजय या दोघांना माहिती आहे या वेळी आपल्या विकेटचं महत्व भरपूर आहे, कारण समोर एक मातब्बर संघ आहे. आणि आता मात्र 11 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज. आणि आपण बघतोय संघाचा कर्णधारच जर तिसरं षटक हाताळत असेल तर मात्र त्याला या परिस्थितीची जाणीव असणार आहे, या मॅचची जाणीव असणार आहे. आणि या सुंदर मॅचची सुरुवात आता मात्र धडाकेबाज झाली आहे. शेवट कसा होतोय, कोण घेऊन जाणार, तेलुगू हिरोज की तेलुगू टायटन्स, हा मात्र तेलुगू प्रीमियर लीगचा चॅम्पियन्सचा हा मोठा पुरस्कार. अजून देखील तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे, धावा जाऊन पोहोचल्यात त्या मात्र एका गड्याच्या मोबदल्यात 17 या धावा. आणि सर्व प्रेक्षक वर्गाचं देखील इकडे स्वागत करतोय, कारण टुर्नामेंट म्हटलं तर मात्र प्रत्येक टुर्नामेंटचा दागिना असलेलं ते म्हणजेच प्रेक्षक वर्ग. आणि तमाम प्रेक्षक वर्गाचं इथे तेलुगू प्रीमियर लीग तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. सूर्य एक फटका, क्या बात है, मिड विकेटच्या दिशेने एक मोठा फटका आणि झेल, कडक कडक कडक. आता मात्र फलंदाज बाद होताना आपल्याला दिसतोय. कॅप्टननी केलेलं आपल्या संघासाठी एक महत्त्वपूर्ण योगदान, एक मोठा गडी बाद करण्यात यश आलंय, क्या बात है. आता मात्र ही मॅच कधीही कुठेही
फिरू शकते. मित्रांनो, क्रिकेट आहे, तुम्हाला माहिती आहे, कधीही काही येऊ शकतं. जेव्हा एका चेंडूवर 6 धावाची गरज असताना आपण सचिन, रमेश तेंडुलकर यांना देखील बघितलंय फिनिशर म्हणून येतात. मात्र आज बघायचंय तेलुगू हिरोज की तेलुगू टायटन्स हा संघ उत्कृष्ट फिनिश करणार काय. चला लगेचच सामना सुरू करायचे. धावा जाऊन पोहोचल्यात त्या मात्र 17 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय, निखिल चिलवेरी. आणि या खेळाडूत देखील ती धम्मक आहे. या खेळाडूला देखील मी सकाळपासून बघतोय, आपले 100% मैदानात देतोय निखिल चिलवेरी. आता मात्र बघायचं आहे कोण हा सामना मारून जातोय, निखिल की गोलंदाज ॲडी. आता मात्र आकुटप्प्याचा चेंडू सन्मान दिलाय. क्या बात आहे. चिलवेरी पहिला धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केलाय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात मात्र माघारी पाठवलाय. आता मात्र चिलवेरी यांना प्रत्येक बॉलवर मात्र रन मिळवायची गरज आहे. कारण सामना आता मात्र थोडासा थांबलाय. धावत संख्या जाऊन पोहोचले ती मात्र 18 या सरासरीवर. आता मात्र आवश्यकता आहे ती मात्र 9 चेंडू मध्ये 16 धावांची. परत एकदा आकुटप्प्याचा चेंडू आता मात्र मिस केलाय. क्या बात है. ॲडी यांचं कौतुक करावं लागेल. खरोखर राजेश उर्फ ॲडी यांनी आपली गोलंदाजीचं सुंदर प्रदर्शन मात्र मैदानात दाखवायला सुरुवात केली. कारण महाअंतिम सामना आहे मित्रांनो, हिरो बनायची संधी मात्र आज आपल्या संघाकडनं. आणि ॲडी देखील तीच संधी, म्हणजेच गोलंदाजाने जर प्रत्येक बॉल डॉट काढला तर मात्र त्याची कॉलर टाईट असते. आपण बघतोय राजेश उर्फ ॲडी सुंदर गोलंदाजी करतायत. चला मॅचला लगेच सुरुवात करायची आहे. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 4 चेंडू अखेरीस धावा जाऊन पोहोचलेत ते मात्र 18. स्ट्राईकवर आहे अजय. परत एकदा स्लोअर वन डिलिव्हरी. आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न काय होतंय आणि एका हातात झेल. क्या बात आहे मित्रांनो. या खेळाडूसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. विनायक यांची मात्र एका हातात झेल आपण बघितली. क्या बात आहे. आणि या झेलला क्रिकेट जगतात बल्ब कॅच म्हणतात मित्रांनो. एक हात टाकला आणि झेल सुंदर. गांधीनगरमध्ये राहणारा हा तेलुगू प्रीमियरचा हा तेलुगू हिरोजचा हा धडाकेबाज क्षेत्ररक्षक. क्या बात आहे. खरोखर जर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकचा अवॉर्ड असता तर मात्र मी विनायक याला दिलं असतं. कडक कडक कडक. आणि यंदाच त्याचं लग्न झालंय आणि मात्र मला वाटतं लग्नाचाच हा परिणाम. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. क्या बात आहे. विनायक उर्फ अट्टी. क्या बात आहे मित्रांनो. महाअंतिम सामना आहे आणि या सामन्यात मात्र रंगतदार होणार. त्याचबरोबर फलंदाजीसाठी आलाय तो म्हणजेच कार्तिक गुडला. मित्रांनो काश्मीरवरनं परवाच आलाय. ह्याची देखील हनीमूनची ट्रिप काश्मीरला आता संपले आणि काश्मीरला हल्ला देखील झालेला आणि त्या हल्ल्यात हा बचावून देखील कार्तिक मैदानात दाखल झालाय. आता मात्र स्वतःच्या संघाला वाचवण्याची गरज आहे. कारण स्वतःला कोणही वाचवतो मात्र स्वतःच्या संघाला जो फलंदाज वाचवतो, जो खेळाडू वाचवतो तोच मात्र मैदानात धडाकेबाज मानला जातो. आणि बघायचंय कार्तिक आज आपल्या संघासाठी धडाकेबाज कामगिरी करतोय का. मॅच अजून संपली नाहीये मित्रांनो. तिसऱ्या षटकातला एक शेवटचा चेंडू बाकी आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती मात्र फक्त 18. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा घुसून खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑफ स्टिकच्या बाहेरून खेळून काढलाय आणि मात्र पंचांचा इशारा. डॉट चेंडू. क्या बात है. शेवटचा डॉट चेंडू टाकून ॲडी यांनी आपली मात्र षटकाची सांगता केली आहे. धावा जाऊन पोहोचल्यात त्या मात्र फक्त 18. खरोखर ॲडी यांचं कौतुक करावं लागेल. फक्त 2 धावा दिलेत आणि मात्र 2 मातब्बर खेळाडू तंबूच्या दिशेने परत पाठवलेत. कडक
कडक कडक गोलंदाजी, खरोखर कमबॅक करून दिलं ॲडी यांनी. मात्र ओपन ग्राउंडमध्ये 2 धावांचं षटक टाकणं भरपूर महत्त्वाचं षटक असतं मित्रांनो. आता मात्र 6 चेंडूमध्ये तब्बल 16 धावांची गरज. आता मात्र 16 धावा आणि स्ट्राईकवर असणार आहे कार्तिक आणि निखिल चिलवेरी. दोनही मातब्बर फलंदाज आहेत मित्रांनो. कधीही काही होऊ शकतं आणि दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे सर्कल मैदान आणि या सर्कल मैदानात कशी फलंदाजी करायची. आता मात्र शेवटचं षटक कोण हाताळणार त्याबद्दलची मात्र तेलुगू हिरोज या संघाकडनं मैदानात चर्चासत्र सुरू आहे आणि सर्वांच्या कपाळावर मात्र अजून देखील प्रश्नचिन्ह आहे. कारण महाअंतिम सामना आहे आणि या महाअंतिम सामन्यात दोनही संघ झटापटी करून लढवय्यासारखे मात्र फायनलमध्ये दाखल झालेत. आणि वरळी मुंबईतील हे खेळाडू आज मात्र तेलुगू प्रीमियरच्या या चषकासाठी आणि अशा कॅचेस मित्रांनो पकडाव्या लागतील आणि अशा कॅचेस मित्रांनो पकडाव्या लागतील. अशा संध्या वारंवार उपकरणं येत नाहीयेत आणि आता मात्र हातातला झेल सोडलाय. पहिल्या बॉलवर मात्र गडी बाद झाला असता मात्र एक त्याचबरोबर श्रीनिवास मार्गम दादा यांचं मात्र या मैदानात आगमन झालंय. त्यांनी मात्र आपल्याला एवढ्या सुंदर ट्रॉफ्यांचं नियोजन करून दिलं त्याबद्दल तेलुगू प्रीमियर लीग त्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतोय व त्यांना विनंती करतोय असेच आमच्या मागे खंबीरपणे उभे राहा. आणि आता मात्र मॅच मध्ये आपण परत वळूया. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल. क्या बात आहे. आता मात्र मॅच मध्ये थोडीशी रंगत बघायला मिळते. पहिला चेंडू कॅच सोडली, दुसरा चेंडू मात्र स्क्वेअर. आता मात्र 5 चेंडू मध्ये 13 धावांची गरज. मित्रांनो 2 मोठे फटके या मॅचचं रूप बदलू शकते आणि बघायचं आहे. आता मात्र स्ट्राईकवर आहे निखिल चिलवेरी आणि नॉन स्ट्राईकला एक कार्तिक गुडला, एक अनुभवी फलंदाज. परत एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मोठा हल्ला. फिल्डर तिकडे तैनात आहे. एक धाव पळून पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील यशस्वी. मित्रांनो बेल्स पडणं हे मात्र गरजेचं असतं क्रिकेट जगतात. तुम्हाला माहिती आहे कित्येक वेळा स्टंपाला बॉल लागतो मात्र बेल्स न पडल्याने एक जीवनदान. धन्यवाद. वरळीतील नावाजलेले फलंदाज अभिषेक आमरे यांचं स्वागत झालंय आणि तेलुगू प्रीमियर लीग तर्फे मी देखील त्यांचं स्वागत करतोय. धावसंख्या हव्यात त्या मात्र आत्ता 4 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज आणि या बॉलवर मला वाटतं 3 धावा मिळवलेल्या आहेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 24 या धावसंख्येवर. 4 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज. चला मॅच थांबवायची नाहीये मित्रांनो कारण मॅच रंगतदार चालली आहे आणि YouTube लाईव्ह व मैदानात प्रेक्षक वर्ग लाखोच्या संख्येने मात्र या मॅचची मजा घेत आहेत. चला लगेचच मॅचला सुरुवात करायची आहे. 4 चेंडू 10 धावांची गरज. आता मात्र स्ट्राईकवर आहे एक अनुभवी फलंदाज कार्तिक. आणि गोलंदाज मात्र विनायक सज्ज आहे. स्ट्राईकवर आहे कार्तिक. हो परत एकदा लेग साईडच्या दिशेने हल्ला केलाय कार्पेटच्या सहाय्याने. एक धाव पळून पूर्ण मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न माघारी पाठवलाय. खरोखर क्षेत्ररक्षणाचं कौतुक करावं लागेल. बॉल पकडून पळत घेऊन आला, फलंदाजाला अडकवून ठेवलंय. 3 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज. आणि मित्रांनो प्रिडिक्शन कोण लावतंय कारण दोनही मातब्बर संघ आहेत. आज मात्र तब्बल 4 मॅच खेळून महाअंतिम सामन्यात आलेत आणि 4च्या 4 विजय मिळवून आलेत. मात्र शेवटच्या सामन्यात कोण मारणार बाजी, कोण ठरणार या तेलुगू प्रीमियर लीगचा बाजीगर संघ थोड्याच वेळात आपल्याला कळणार आहे मित्रांनो. 3 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज आणि धावा फक्त 25 झाल्यात. अजून देखील 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा खूप टप्प्याचा चेंडू. आता मात्र सुरेख फटका. बॉल जातोय सीमा रेषा पार. खणखणीत षटकार.
क्या बात है. मॅच मध्ये मात्र आता रंगत आली आहे. 2 चेंडू मध्ये 3 धावांची गरज. काय असतं ते मात्र निखिल चिलवेरीने कमबॅक करून दाखवलंय. कारण मित्रांनो महाअंतिम सामना आहे. हा सामना रंगतदार झालाच पाहिजे. 2 चेंडू मध्ये 3 धावांची गरज. कधीही आपल्याला वाटतं की ही मॅच सहजरित्या जिंकू शकते, मात्र एका फटक्यावर बघितलं सामना इकडचा तिकडे गेला. क्या बात है. वरळी हिरोज की वरळी टायटन्स. कडक 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 2 चेंडू मध्ये 3 धावांची गरज. जर मॅच टाय झाला तर आपण सुपर ओव्हर खेळणार आहे, ते आपण लक्ष द्या सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांनी. क्या बात है. 2 चेंडू मध्ये 3 धावांचा गरज या तेलुगू टायटन्स या संघाला मॅच जिंकण्याकरता. आणि सर्व प्रेक्षक देखील वाट बघतायत कुठली, तर मात्र सुपर ओव्हरची. कारण सुपर ओव्हर जर झाली तर ती देखील धमाकेदार होणार आहे मित्रांनो. 2 चेंडू मध्ये 3 धावांची गरज आहे. कोण जिंकणार हा महाअंतिम सोहळ्याचा महाअंतिम सामना. स्ट्राईक वर आहे आता मात्र चिलबेरी. तेलुगू टायटन्स हा संघ लास्ट 2 वर्ष जिंकत आलाय आणि 3ऱ्या वर्षी मला वाटतं यांच्या डोक्यावर देखील हा चॅम्पियन्सचा ताज असणार आहे काय, मात्र थोड्याच वेळात आपल्याला कळणार. 2 चेंडू 3 धावांची गरज. सुरेख चेंडू. क्या बात है. चेंडू डॉट काढलेला, मात्र सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळाली. क्या बात है. कार्तिक यांनी मात्र स्ट्राईक आपल्याकडे घेतली आहे. एका चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज. खरोखर विनायक यांचं कौतुक करावं लागेल. एक षटकार मिळवला, त्याच्यानंतरचा बॉल म्हणजे डॉट आला. आता मात्र मॅच मध्ये रंगत आलेली आहे. एका चेंडूमध्ये 2 धावांची गरज. आणि मित्रांनो जर टाय झाली तर मात्र सुपर ओव्हर होणार आहे. कारण या लीगचा मित्रांनो नियमच आहे. खरोखर मित्रांनो तेलुगू प्रीमियर लीग मुंबईतील असंख्य तेलुगू खेळाडूंमध्ये ही खेळवली जाणारी मोठी लीग आणि ही नावाजलेली लीग देखील आहे मित्रांनो. मुंबईतील मोठ्या मोठ्या लीग मध्ये या लीगचा मात्र उच्चार केला जातो आणि तेलुगू प्रीमियर लीगचा देखील चला शेवटचा चेंडू. गोलंदाज सज्ज. हो आणि ही मॅच जिंकले ती म्हणजे तेलुगू टायटन्स या संघाने. सलग 3 वर्षाचा चॅम्पियन संघ हॅट्रिक मारले. क्या बात है. तेलुगू प्रीमियर लीगचा हा 3रा चॅम्पियन संघ आणि विशाल बोरवनचा आपण बघतोय आनंद आनंद आणि आनंद. क्या बात है. Congratulations to Telugu Titans for winning 3rd time in a row as the finals. Umesh Alle, the owner of Telugu Titans, Vishal Borwancha, Sai Suram. Congratulations to all the players and tough luck to Telugu heroes. Very, very hard fight for the final match. Unfortunately on the losing side. అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన చేసినటువంటి తెలుగు టైటన్స్ ఈ యొక్క సీజన్ 3ని గెలుచుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలుగు హీరోస్ ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది. అయినా కూడా అంతిమ పోరులో ఒక్క అడుగు వెనుకంజలు ఉండడం ద్వారా ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో ఓటమి పాలవడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బహుత్ ఎక్సైటింగ్ మ్యాచ్ మనం చూసాం. ఇప్పుడు పోరు నీదా నాదా అన్నటువంటి ఈ యొక్క ఘర్షణలో విజయం సాధించినటువంటి తెలుగు టైటన్స్ కి చాలా చాలా అభినందనలు. కంగ్రాచులేషన్స్. తెలుగు హీరోస్ అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన చేసి ఫైనల్ మ్యాచ్ కి రావడం జరిగింది. ఫైనల్లో కూడా గెలిచే అంచులో ఉండి కూడా ఒక బంకులో 2 పరుగులు కావాల్సినటువంటి సమయంలో 2 పరుగులు తీసి తెలుగు టైటన్స్ గెలవడం జరిగింది. खूप खूप धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद आमचा मित्र नॉडी ऐकत असेल खूप खूप धन्यवाद. आपण या अंतिम सामन्यामध्ये जे आपला कॉमेंट्री दिला मराठीमध्ये त्यासाठी खूप खूप आभार. खूप सुंदर असा टुर्नामेंट तेलुगू प्रीमियर लीग द नेक्स्ट जेन स्पोर्ट्स क्लब प्रेझेंट तेलुगू ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ 3 2025 అంతిమ విజయం గెలిచినటువంటి తెలుగు టైటన్స్ మూడోసారి సీజన్ 3 సీజన్ 2 సీజన్ 1 3 సార్లు కూడా తెలుగు టైటన్స్ విజయం సాధించింది. కంగ్రాచులేషన్.